everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania. तो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଭଲ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଏଡିଟୋରିଆଲ ହିଁ କମ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଡିସ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Khurda district of Odisha. Actually, I'm a state government civil servant under Odisha government, right? So teaching is my hobby and passion. So after office time, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବା କଥା, ରାଇଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିକି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଡିଟୋରିଆଲ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ତାର କେମିତି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ତା ଉପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି 9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାହେଉଛି ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 94% ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଏତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି ତାର ଆମାଉଣ୍ଟଟା 9.9 ଲାख କରୋଡ଼, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତା ଦେହରେ 94% ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଯେତିକି ଆମର ଆମେ ଇୟର ବାଇ ଇୟର କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛେ ସବୁଠୁ ହାୟର ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ହାୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ରାଇଟ୍। ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇୟର ବାଇ ଇୟର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫରେନ୍ ପଲିସି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତେ ଆଉ ହେଡ଼ାକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାଉଛି ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫାର୍ମ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର କିଛି ଇକୋନୋମି ରିଫର୍ମ ନିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଜିଏସ୍ଟି ରିଫର୍ମ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିଏସ୍ଟି ରିଫର୍ମ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ରିଫର୍ମ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଫାର୍ମ ରିଲାଏବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତଟା ମେନଲି ଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଇନ୍। କାହିଁକିନା ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରଟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଇନାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆମର ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଫର୍ ଆୱାର ଇକୋନୋମି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦର୍ଶଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାହେଉଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଫରେନ୍ ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏତେ ରିଲାଏବୁଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିସି ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୁପିର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଫରେନ୍ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏତେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି।
ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କମି ଯାଇଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାରିଫ କରାହଉଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ। କି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ, ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆର୍ଟିକଲଟା ଆମର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଯୋଉ ଗାଜା ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଆମର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପ ବି ଆଟାଚ କରିଦେଇଛି ପିପିଟିରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକ ମେନଲି ଗାଜା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଯୋଉ ହମାସ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା, ହମାସ ଗୋଟେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯିଏକି ଗାଜାରେ ଗାଜା ଯୋଉ ଏରିଆ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ରହିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆପଣ ସେଟା ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପଢିପାରିବେ। ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହମାସ ଭିତରେ ୱାର ଚାଲିଥିଲା। ତ ଇସ୍ରାଏଲ କହିବା କଥା କି ହମାସ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଅଛି, ଯିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକଙ୍କର ଭଏସକୁ ରେଜ କରେ, ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ କରି ଆସୁଛି, ରାଇଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ହମାସ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲଢେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୋର୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ମାସାକାର କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା ଇନ୍ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପଟା ମୁଁ ଆଟାଚ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଇସ୍ରାଏଲର ବର୍ଡର କୋଉଟା ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉ ଗୋଟେ, ତାକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏରିଆର ବର୍ଡରଟା କୋଉଟା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏରିଆଟା ଆମର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ। ତ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହମାସ ଭିତରେ ୱାରଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ମାନେ ଆଟାକ ଏବେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରୁଛି ଇନ୍ ଗାଜାରେ ଟୁ ଏଲିମିନେଟ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆମର ଯୋଉ ହମାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ କିଛି ପିସ୍ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଫର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ। ତ ସେ ପିସ୍ ପ୍ଲାନରେ କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲଟା ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପିସ୍ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ସେ ପ୍ଲାନ ଗୁଡାକ। ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଭଏସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନସର୍ନ ସେ ପିସ୍ ପ୍ଲାନରେ ମିସିଂ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପିପୁଲ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ପିସ୍ ପ୍ଲାନରେ। ଆର୍ଟିକଲରେ ସେଟା କୁହାହଉଛି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ ଯୋଉ ତା ଆଟାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମାସାକାର ମାନେ ଓମେନ କିମ୍ବା ଚିଲଡ୍ରେନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଏତେ ଆଟାକ ହେଲା ପରେ ବି ଯୋଉ ହମାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫିଟ କରିପାରିଲାନି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ ଫେଲୁଅର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପିସ୍ ପ୍ଲାନରେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ। ତ ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପିସ୍ ପ୍ଲାନରେ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ଏ ପିସ୍ ପ୍ଲାନ ରିଲିଜ ପରେ ଆମର ଯିଏ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନେତାନ୍ୟାହୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ହମାସ ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଦର ତମେ ଏଇ ପିସ୍ ପ୍ଲାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର, ନହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ତମକୁ ଆଟାକ କରିବ, ମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ଲାନ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଗୋଟେ ସିଜ ଫାୟାର ମାନେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ହମାସର ଲୋକ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲାନ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଗାଜା ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ସେଟା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର ହିଁ କହିବ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାନ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବଡି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ, ଯାହାର କାମ ହେଲା ସେଠି ଯୋଉ ଇନସିଡେନ୍ସ ହଉଛି ତାକୁ ଓଭରସି କରିବା, ଯୋଉଟାର ମାନେ ହେଡ ଅଫ ରହିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ୟୁଏସଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏ ପ୍ଲାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ
इंटरनेशनल माने बाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय हबो इन गाजा स्ट्रिप जार काम होला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिवो इन गाजा स्ट्रिप। तो आर्टिकल ले कुआ होची माने गाजा को माने ए पीस प्लान टा जदी माने इम्प्लीमेंटेशन करा हबो तो गाजा रे गोटे बाहर देश रु आसीथिबा गोटे फोर्स एस्टाब्लिश हबो आ फॉरेन मिलिटरी सेठी एस्टाब्लिश हे जो जहा कि पैलेस्टाइन लोक मानकर सोभरजिनिटी पई गोटे खतरा स्वरूप राइट। आर्टिकल कुआ होची माने एई जो पीस प्लान रे पैलेस्टाइन लोक जो ऑर्गेनाइजेशन अछि पैलेस्टाइन लोक मानकर कोनोसी भी पैलेस्टाइन रो लोक मानकू किछि डिसीजन मेकिंग बॉडी रे इंक्लूड करा जाइनी जोथि पई तांको सेमाने एटा मानिया भी कष्टकर हेई परिबो तो तांको इंक्लूड करियार थिला जेहेतु तांको एरिया पई एटा गोटे रिफॉर्म काम निया जाउची। तापरे आर्टिकल ले कुआ होची ए प्लान रे किछि टाइम लाइन नै कि को टाइम किछि डेडलाइन नै जो डेडलाइन भितरे एई गोल उरा किछि अचीव करा हबो। तापरे ए जो प्लान रे किछि माने माने स्पेसिफिकेशन हेनी को कंट्री जो इंटरनेशनल जो मिलिटरी फोर्स टा सेठी डिप्लॉय होबे को कंट्री केते कंट्रीब्यूट करिवे सेठी मध्ये किछि माने डिफाइन हेनी जोटा गोटे माने खाली एमती प्रपोजल हे जाईची। तापरे आउ ए प्लान रे किछि क्लैरिफिकेशन नै कि को देश ए जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस टा को कैरी आउट करिवो राइट। तो माने प्लान रे किछि सेमती डिटेल्स रे मेंशन नै। तापरे आर्टिकल कुआ होची हमर डोनाल्ड ट्रम्प को जो इजराइल जो कंटिन्यूस मासाकार करूची इन गाजा तांको रोकिबार थिला ना कि किंतु ए प्लान रे इजराइल एग्नेस्ट किछि एक्शन निया जायनी जोथि पई एकाने इजराइल ही मेन माने गोटे मासाकार क्रिएट करूची माने इजराइल जो प्राइम मिनिस्टर अछंती किंतु तांको एग्नेस्ट किछि एक्शन निया जायनी जोटा माने आर्टिकल ले क्रिटिसाइज करा होची। तापरे माने राइटर कहउछन जे डोनाल्ड ट्रम्प माने ए जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टा को थ्रू दिस पीस प्लान मोर कॉम्प्लिकेट कर दउछंती जोथि पई तांको फ्यूचर रे भोगिया पड़ियो माने तांको फोर्स टा यूएसए माने इजीली माने गोटे जो कादो भितर को पसी आसी कि परे सेटा सफर करिवो सेटा फ्यूचर ही कहइबो। तो एतिक आर्टिकल थिला बहुत भलो आर्टिकल गोटे एटा रिसेंट डेवलपमेंट हेची वेस्ट एशिया रे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आउ थर्ड आर्टिकल टा हमर जो इंडिया और पाकिस्तान भीतर एबे जो रिसेंट गोटे एस्केलेशन हेची तो तारी ऊपर आर्टिकल टा आपण जानथिबे पाकिस्तान जो सैटेलाइट इमेज रे देखा जाइछे पाकिस्तान हमर जो सार्क क्रीक एरिया अछि आपण मु एडिटोरियल मैप टा पीपीटी रे मैप टा अटैच कर देइछि। हमर जो गुजरात रो गल्फ ऑफ कच्छ आ गल्फ ऑफ खंबत पाखरे जो अरबियन ओशन अछि तो से मैरीटाइम बाउंड्री गोटे हमर इंडिया और पाकिस्तान भीतर अछि जो सार्क क्रीक बोली से जगह टा कहउछंती आपण मैप रे इजीली देखि परिबे। तो से एरिया रे पाकिस्तान नो बाउंड्री साइड रे हमर पाकिस्तान माने कंटीन्यूअसली हमर नाभाल डेवलपमेंट करी करी चलछि जोटा गोटे इंडिया पई गोटे कंसर्निंग माने जिंस। तो आर्टिकल ले कुआ होची हमर जो पाकिस्तान मैरीटाइम एक्टिविटी इन सार्क क्रीक एरिया सेटा बढ़िबारे लागिछि। तो हमर जे राजनाथ सिंह अछंती सीए पाकिस्तान को कड़ा रेस्पॉन्स देइछंती कहउछंती जेमती हमर जति पाकिस्तान किछि भी ट्राई कला अटेम्प्ट कला ताले ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हबो जोटार रेस्पॉन्स रहिबो जे पाकिस्तान नो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमें चेंज कर दउ राइट। तो पाकिस्तान रो हिस्ट्री और ज्योग्राफी चेंज करिया पई राजनाथ सिंह धमक देइछंती। तो आर्टिकल ले कुआ होची हमर रिसेंटली पाकिस्तान तार नाभाल जो माने जो नाभी अछि ताको बहुत माने फंडिंग किबा डिफरेंट माने वेसल को अटैच करिकि माने ताको स्ट्रेंथन करिवार लागिछि जेंति आईएनएस निस्तार बोली गोटे तांकर जो नाभाल शिप अछि एंड ने पाकिस्तान माने स्ट्रांग करिवार लागिछि माने तार जो मैरीटाइम बॉर्डर एरिया रे हमर
बॉर्डर एरिया रे माने किछि जिंस इंक्लूड करिकी सेटा हमें डिस्कशन करिया को नाभाल शिप से माने इंक्लूड करिकी तांका जो मैरीटाइम जो नाभाल जो नाभी जो अच्छी तांकर पाकिस्तान नाभी कोन जिंस इंक्लूड करिकी से माने जिंसटाको तांको नाभीटाको केमति स्ट्रेंथन करछन्ते विथ द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री आर्टिकल कुआउचे हमर इंडिया मध्य हमर जॉइंट पेट्रोलिंग करिछि विथ फिलिपाइन इन द साउथ चाइना सी जो थरे हमर जो साउथ चाइना सी रे चाइना रो डोमिनेंस ता बढ़िबार लागुतला आउ चाइना रो प्रेजेंस थिला हमर कराची हे गला गदर पोर्ट रे जो चाइना रो डोमिनेंस ता बढ़िबार थिला ताकू टैकल करिया पे इंडिया मध्य साउथ चाइना सी रे माने गोटे लार्ज अमाउंट रे साउथ चाइना सी हे गला इंडियन ओशन हे गला किबा अरेबियन सी ले अरेबियन जो सी रे माने लार्ज अमाउंट ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज उरा कैरी आउट करछि जोटर की रेस्पॉन्स होउछि माने चाइना रो डोमिनेंस ता को कर्व करिया इन दिस रीजन आर्टिकल ले कुआउछि हमर जो मु कहली पाकिस्तान जेमति चाइना रो सेटा बना हेछि वेसल टा हैंगर क्लास सबमरीन पीएन हैंगर क्लास सबमरीन नो ना होछि पीएनएस मैंग्रो आउ P282 सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल माने जोटर एग्जांपल आपण देई परिबे जोटा कि इंक्लूड करके पाकिस्तान ताको नाभी को माने गोटे मॉडर्नाइज करिया पई ट्राई करछि निजर तो किछि डेवलप माने करि नाहंती माने चाइना रो जो डेवलप जिंस ताकू से माने नाभी रे इंक्लूड करी ताको नाभी को स्ट्रेंथन करिया पई ट्राई करछन्ती तो आर्टिकल ले कुआ होछि माने एबे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो कन्फ्रंटेशन की वार सिचुएशन हमर नाभी रे देखिया पई मिलुची जो नाभी रे जो पाकिस्तान सार्क क्रिक एरिया रे जो डेवलपमेंट चलची तो सही डेवलपमेंट माने गोटे इंडिया पई गोटे अलार्म घंटी तो इंडिया पाकिस्तान नो ए डेवलपमेंट नाभाल डेवलपमेंट को सीरियसली नबा दरकार तो आर्टिकल ले कहउची हमर इंडिया रो भी किछि नाभी रो किछि प्रॉब्लम अछि हमर जो नाभाल फ्लीट अछि सी धीरे धीरे माने ओल्ड एज हे जिबारे लागिलान माने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नै तो इंडिया पई सेटा प्रॉब्लम हे पारे जोटा कि मॉडर्नाइजेशन माने जो इंडियन नाभी रो एते मॉडर्नाइजेशन जोति पई हे परिनी तो आर्टिकल ले कुआ होचे हमर पाकिस्तान हमर चाइना रो जो सबमरीन आ बाबर क्लास करभेट हे गला ताकू मध्य इंक्लूड करके निज नाभी रे निज नाभी को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करिवार लागि जोटा इंडिया रो मॉडर्नाइजेशन ता एते फास्ट पेस रे हे परिनी नाभी रो मिलिटरी आ एयर फोर्स रो हे परछि किंतु नाभी ऊपर इंडिया गवर्नमेंट एते फोकस दे परिबे देई नै जोटा कि पाकिस्तान आज अपॉर्चुनिटी सेटा यूज करकी मैरीटाइम रूट रे मध्य अटैक करिया पे योजना करछि राइट तो आर्टिकल ले कुआ होछि हमर माने आर्टिकल नेक्स्ट कहउछि इंडिया को एई सब जिंस पई सतर्क रहिया को पड़िबो कैना पाकिस्तान रिसेंटली विथ द सपोर्ट ऑफ हमर जो चाइना और यूएस रो सपोर्ट जोगु माने एक्टिविटी ता आपण देखथुबे बढ़िबारे लागि छि कैना से माने बैकएंड रे ताको तांकर सपोर्ट रहउछि इन फाइनेंशियल और मिलिटरी वे और इन डिप्लोमेटिक लेवल तो आउ गोटे टेंशन इंडिया पे जो चाइना रो प्रेजेंस ता रहउछि कराची एंड ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान जोटा रो इंडिया रो सिक्योरिटी कंसर्न पई थ्रेट हे पारे केना कराची आ ग्वादर पोर्ट इंडिया रो बॉर्डर को लागुछि तो पाकिस्तान चाइना सेटा को आज ए मिलिटरी बेस यूज करके इंडिया पर अटैक करि पारे तो इंडिया को एई सब जिंस को ध्यान रे रखिया दरकार तो एतिकी थिला आर्टिकल एतिकी ही की पॉइंट भाला आउ किछि बेसी भालानी तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आउ हमर फोर्थ आर्टिकल टा हमर इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट माने जो फाइनेंसिंग ऑफ हमर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी तो हमर जो ग्रीन न्यू टेक्नोलॉजी आछि रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड ताकू केमति फाइनेंस करा जिवो तो सही रिलेटेड आर्टिकल टा आर्टिकल ले फर्स्ट को होछि जे हमर इंडिया रे बे गोटे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन देखिया को मिली थी जो थरे हमर फॉसिल फ्यूल जो अछि धीरे धीरे रिप्लेस हबा को बसलानी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी तो हमर इंडिया करंटली हमर 24.5 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऐड करिछि इन 2024 रे थ्रू आउट द ईयर जोटा कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आफ्टर चाइना एंड यूएसए
तो आमर यूएन सेक्रेटरी जनरल जी अच्छी तांकर गोटे क्लाइमेट रिपोर्ट अच्छी जो से रेकग्नाइज कर इंडिया गोटे एमती गोटे लीडिंग डेवलपिंग कंट्री जार कैपेबिलिटी अच्छी टू स्केल अप द सोलार एंड विंड एनर्जी माने जी की स्केल अप कर सोलार एंड विंड एनर्जी इन मैक्सिमम स्केल गोटे ही डेवलपिंग कंट्री को से चूज कर इंडिया जार कैपेबिलिटी अच्छी टू rapidly multiply the development of solar and wind energy, right? आर्टिकल कहूँ आमर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लोक को एम्प्लॉयमेंट देछि आमर जो जीडीपी रे वर्ल्ड जीडीपी रे तार 5% कंट्रीब्यूशन रहउछि तो इंडिया मध्य आमर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अछि आपण जानिथिबे गोटे आमर जो आमर मिड लैटिट्यूड रे रहउछंती इक्वेटर पाखापाखी कंट्री तांकर गोटे एसोसिएशन जोटार मेन एम होछि सोलर एनर्जी को केमती बेटर वे रे आमे हार्नेस करिवा, राइट? तो इंडिया रो से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रे गोटे लीडरशिप रोल अछि जोटा गोटे काबिले तारीफ सेटा, राइट? आर्टिकल कहउछि हमर जो क्लाइमेट हमर टारगेट अछि जो यूएन हे गला कि जो कंट्री रो टारगेट अछि हमर जेमती इंडिया रो अछि 2070 सुधा नेट जीरो टारगेट तो विदाउट क्लाइमेट फाइनेंस रे हमें से टारगेट को अचीव करिया बहुत कष्ट तो क्लाइमेट जो फाइनेंस दरकार को क्षेत्र रे दरकार जेमती हमर बैटरी इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल हे गला तापरे डिसेंट्रलाइज ग्रिड हमर जानिथिबे माने हमर जो सोलर एनर्जी हमें धर छात ऊपर लगेले माने जदी हमें डिफरेंट घर रे लगे दे कि हमर जो गोटे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी को हमें सप्लाई करबा तो से कांसेप्ट आउची डिसेंट्रलाइज माने डिफरेंट ग्रिड रहिला सबुथरू एनर्जी हमर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है कि गोटे सेंट्रल ग्रिड को जीवो तो सेटा डिसेंट्रलाइज कांसेप्ट रे हिची जाको डिसेंट्रलाइज ग्रिड कहउचंती तापर ग्रीन हाइड्रोजन जो आज ए बायोफ्यूल हमें डिस्कस करथिले ताको मध्ये फाइनेंस करिया पई एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस दरकार, राइट? आर्टिकल कहउची हमर जो अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर दरकार हमर जदी 2030 सुधा हमर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस हमर जो टारगेट अछि हमर टेम्परेचर को कमे पई एटलीस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर दरकार बाय 2030 तापरे किंतु हमर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जोटा इंडिया रो अछि सीए कहउचन जे अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर बाय 2030 दरकार टू मीट द हमर जो नेशनल वाइज टारगेट अछि, राइट? आर्टिकल कहउचे हमर डिफरेंट एक्टिविटीज पई हमर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया पई हमर बहुत जिनस पई क्लाइमेट फाइनेंस रो बहुत जरूरत रही तो आर्टिकल हमर ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऊपर एम्फासिस दिया जाउची माने ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जानथिबे जेमती बॉन्ड इश्यू हुए सेमती इश्यू हो किंतु बॉन्ड पे ही जो पैसा निया हुए सेटा केवल हमर जो ग्रीन एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी अछि ता पई यूज हो तो आर्टिकल कहउची हमर इंडिया रो जो सस्टेनेबल फाइनेंस टारगेट अछि माने जो सस्टेनेबल जतिक माने एसटीजी गोल ले जतिक टारगेट अछि तो सेति 2030 सुधा से टारगेट फुलफिल करिया पई हेले अराउंड 100 बिलियन डॉलर दरकार तापरे हमर इंडिया रो जो माने किछि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट विषय अनाउंस कराई जेछि जेमती सोलर एनर्जी ऑक्शन माने गोटे लोक जदी प्रोड्यूस करूची से एनर्जीटा हमर घरे सोलर पैनल लगई कि सेटा ऑक्शन हबार मध्ये प्रोविजन अछि तापरे हमर इंडिया गवर्नमेंट विभिन्न सब्सिडी देउची थ्रो टाटा पावर की जा हला ता माध्यम रे केमती गोटे इंडिविजुअल सोलर पैनल लेकी घरे लगई कि सेत्रु एनर्जी प्रोडक्शन करि परिबे तापरे सोलर पार्क स्कीम हे गला जोटी गोटे टारगेट रखाई छी ह्यूज अमाउंट रो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पई आर्टिकल कहउची हमर जो सेबी हे गला माने सी हमर जो क्लाइमेट रिलेटेड बॉन्ड को माने अप्रूव देइचंती टू माने से बॉन्ड जरिया रे केंती पैसा कलेक्शन हे कि हमर जो ग्रीन एनर्जी अछि ताको प्रोडक्शन करिया रे से पैसाटा खर्च होबो माने सेबी हमर जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अछि से अप्रूव देइचंती तापरे आर्टिकल कहउची हमर इंडिया रो जो जहार इंडिया रो जो क्लाइमेट रिलेटेड जो स्ट्रेटजी अछि इंडिया
तार जो फाइनेंस टाको डाइवर्सिफाई करिया कथा माने केवल गोटे सोर्स ऊपर डिपेंडेंट न होई डिफरेंट जो सोर्स अछि ताको माने एक्सप्लोइट करिया कथा माने टू एक्सट्रैक्ट फाइनेंस फॉर क्लाइमेट फाइनेंस राइट आर्टिकल ले कुआउचे हमर नेशनल आ स्टेट गवर्नमेंट बेले बेले बजेट आलोकेशन करूचंती माने जेमती प्राइवेट माने बजेट आलोकेशन करूचंती सेटा गोटे सोर्स हेई पारे नले प्राइवेट कैपिटल को मध्य में अट्रैक्ट करि परिबा ताकू जो सीएसआर फंड माध्यम रे ताकू हमें मैंडेटरी हमें किछि प्रोविजन करि परिबे से माने केमती हमर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन पई काम करिवे तापर आर्टिकल कुआउचे आउ किछि गवर्नमेंट स्टेप नै परिबे जेमती क्रेडिट गोटे प्रोवाइड करि परिबे जो एमएसएमई माने हमर ग्रीन टेक्नोलॉजी पई काम करछंती तापर पार्शियल गारंटी स्कीम माने धर गोटे किछि एमएसएमई हमर ग्रीन टेक्नोलॉजी दिगरे काम करछि माने ग्रीन टेक्नोलॉजी दिगरे काम करछि तो से लोन जो से नबो तार किछि गारंटी गवर्नमेंट देई परिबो माने ताकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे राइट तो आर्टिकल ले कुआ होछि हमर आउ किछि जेंति लोन गारंटी गोटे गवर्नमेंट देई परिबो जेंति एमएसएमई गोटे माने इनोवेशन को प्रमोट करिवे विदाउट हेजिटेशन फॉर कैपिटल आर्टिकल ले कुआ होछि एई जो स्टेप नेले हमर जो पेंशन फंड आउ गोटे स्टेप भी हमर जो पेंशन फंड हमर जो गवर्नमेंट पाखरे पेंशन हे गला किबा इंश्योर पाखरे इंश्योरेंस कंपनी पाखरे बहुत तांकर कैपिटल अछि से फंड को मधे यूज करा जाई परिबो तो प्रमोट थ्रो फाइनेंसिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी तापरे ईपीएफ हमर जो अछि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एलआईसी एमाने मध्य किछि तांकर पैसा को अलोकेट करि परिबे थ्रो ग्रीन प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट एथिरे किछि एक्टिव स्टेप नबा दरकार तांको जेमति डायरेक्शन देई परिबो कि से माने ए पैसा को गोटे किछि ग्रीन टेक्नोलॉजी पई खर्च करंतो ताले से माने खर्च करिवो तो आर्टिकल ले कहउचे हमर जो फाइनेंसिंग जो हमें स्ट्रीम अछि सेगुरा सबले ट्रांसपेरेंट होबा दरकार आउ सबले रेगुलेटेड होबा दरकार एमिति नै जे गवर्नमेंट रो रेगुलेशन कमी जीवो नले सिटी करप्शन होबार बहुत चांसेस अछि आर्टिकल ले कहउचंती माने इंडिया को मध्य जो क्लाइमेट फाइनेंस दिगरे इनोवेशन आनियार अछि टेक्नोलॉजी रे मध्य इनोवेशन आनियार अछि तापरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मध्य इंक्लूड करियार अछि जदी किछि ग्रीन प्रोजेक्ट रे इन्वेस्टमेंट होउछि तादरे रिस्क केते रहिबो तो एआई रे यूज बहुत परिमाण रे करियार अछि तो एतिकी थिला आर्टिकल बहुत बढ़िया आर्टिकल एतिकी आज रो होउछि डिस्कशन तो आज रो डिस्कशन ता हमें एठी सरीबा आशा करछि आपन को भल लागिथिबो तो नेक्स्ट हमें काली डिस्कशन करिबा तो थैंक यू एवरीवन प्लीज लाइक आउ सब्सक्राइब करंतो आ शेयर विथ योर कलीग्स राइट तो थैंक यू